था। कैन यू इमेजिन? पतरस जो ना पूरे भीड़ को बोल रहा था, ओके लेट्स से हाउ मेनी पीपल हियर कैन स्पीक बंगाली? कितने लोग बांग्ला बोल सकते हैं? ओके ऑलराइट, नो लेट मी पुट इट इन देयर, हाउ मेनी ऑफ यू आर बंगाली? कितने जन बंगाली हैं यहाँ पे? ओके आई एम नॉट ओके, सो वी हैव बंगाली स्पीकिंग पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक संताली? कितने जन संथाली बोल सकते हैं? Okay, Tapan and myself. And okay, how many of you can speak what? उड़िया। Hindi. No, I mean, okay, Hindi is your major language. Now, what I'm trying to say is this, very simple. You know, the day is coming when we all will know each other. All will understand all the languages. एक दिन आ रहा है जब हम हर भाषा को समझ पाएंगे। Because when the Holy Spirit will give us power, we will be able to understand. That's what happened when Peter was speaking, and there were people from different language group, and they could understand what Peter was saying. और पतरस प्रचार कर रहा था और हर भाषी लोग थे वहाँ पर, लेकिन तब पर भी लोग अपनी अपनी भाषाओं में समझ पाए थे उसकी बातों को। Isn't it amazing? ये क्या एक अद्भुत बात नहीं? And that's the power of God. और परमेश्वर की ऐसी ही सामर्थ है। And not only Peter, even I think many other occasions we have found that people, they were speaking some other language and they could understand. और हमने देखा है कि कई बार लोग दूसरी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु ने दूसरों को उसको समझने के लिए मदद किया। Can you imagine, like, you know, somewhere in a small village, in a tribal village, somebody is speaking English? कल्पना कीजिए एक आदिवासी गांव में, वहां पे लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। Yeah, and this has happened in various occasions. और कई बार ऐसा हुआ है। Now, what I'm trying to say is, you know, God is all powerful, almighty. परमेश्वर शक्तिमान है, हर कुछ को करने में Our सक्षम। prayer is that whole city of Calcutta should know God. हमारी प्रार्थना है कि कलकत्ता शहर प्रभु को जान पाए। Amen. आमीन। Now the story I heard about maybe 10-12 children playing, and in the middle of them there was a dog, and they had just surrounded the dog. मैंने एक कहानी सुनी जहाँ पर एक कुत्ता है, उसके चारों तरफ लोग घिरे हुए हैं और सब खेल रहे हैं। And there was a pastor just passing through those children. और एक पास्टर है जो उस बच्चों के पास में से गुजर रहा था। And all of a sudden he realized that maybe they are doing something to this dog. और उनको ऐसा लगा कि मानो ये बच्चे कुत्ते के साथ कुछ कर रहे हैं। And he said, "Hey, what are you doing?" आप लोग क्या कर रहे हैं? And they said, "You know, all of us, we love this dog, and there's a fight over this, that who will take this dog to home." और हम सब इस कुत्ते को बहुत प्रेम करते हैं और हमारे बीच में एक झगड़ा चल रहा है कि इस कुत्ते को कौन घर में लेके जाएगा। And finally we have decided that whoever will tell the biggest lie is going to take the dog. और हमने फैसला किया जो सबसे बड़ा झूठ बोल सकेगा वही उस कुत्ते को लेके जाएगा। And pastor was a little upset. और वो पास्टर थोड़ा सा दुखी हुआ इस बात को सुन के। Hey children, you should be speaking truth. और उसने बोला बच्चों तुम लोग को तो सच बोलना चाहिए। And almost he gave them 10 minutes of lecture. और 10 मिनट तक उनको एक भाषण दिया उन्होंने। And in the end he said, you know, when I was at your age, I never told a lie. और उसने बोला कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैंने कभी झूठ नहीं बोला। And there was a big silence. और एक सन्नाटा हो गया। And pastor was very happy. I think the children, they really understood. और पास्टर ने बोला बच्चे शायद मेरी बात को सचमुच समझ गए हैं। But all of a sudden a little boy stood up and said, और एक छोटे बच्चे ने खड़े होकर कहा, "Give the dog to that pastor." अरे इस पास्टर को ये वाला कुत्ता दे दो। Okay, anyway, I think in this world we have different challenges. इस जगत में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं हमारे पास। Ever since the human being, they have committed sin, जब से मनुष्य ने पाप किया there had always been some problem. उसके बाद से लेके कुछ ना कुछ समस्या लगी हुई। We all know that in the book of Genesis God created everything. हमने आदि पुस्तक में पाया है कि परमेश्वर ने हर एक बातों की सृष्टि And की। finally he created human being in his own image. और उन्होंने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। And they could have fellowship with one another. ताकि एक दूसरे के साथ एक संगति कर सके। There was a love, there was a joy. और उनके बीच में अच्छा प्रेम था, आनंद था।
And we know that Satan came and tempted Eve, and finally they got into sin. और हमने सुना है कि उसके बाद शैतान ने हवा को भरमाया और वो लोग पाप में घुस गए। And that's how sin enter in the hearts of people. और इस प्रकार से पाप मनुष्य के हृदय पे उतरा And pap grew from there. और उसके बाद पाप बढ़ना शुरू We किया। know that Adam and Eve, they had children, हम जानते हैं कि आदम और हवा के बच्चे थे, Cain and Abel. केन और हाबिल जो है। And who killed whom? किसने किसको मारा? I always get confused. Cain killed Abel. कैन ने हाबिल को मारा। And that's not the end, but the sin grew. उसके बाद वही खत्म नहीं, लेकिन पाप का जो यात्रा है बढ़ता रहा वो। And one day when God saw that everybody was so much sinful, he thought of destroying everyone. और एक समय आया जब परमेश्वर ने देखा कि सारा चीज इतना खराब हो चुका है कि प्रभु ने निर्णय किया कि तमाम चीजों को वो विनाश करे। And he said, I'm going to send flood and destroy every one of them. और उसने फैसला किया कि वो एक सैलाब को लाएगा जिसके द्वारा सारी चीजों को वो नष्ट करेगा। But he also wanted to save people, those who will be inside the big ship which he asked Noah to build it. और उसने अपनी योजना के तहत नोहा को जो एक जहाज निर्माण करने के लिए कहा और वो उसके घराने को, उसके परिवार को बचाना चाहता था। And of course, not many people came into that ship. और बहुत सारे लोग उस जहाज पर प्रवेश नहीं किए। There was only one family, that is the family of Noah. और सिर्फ एक परिवार, नोहा का परिवार। But you imagine that if other people were there inside that ark, कल्पना कीजिए अगर दूसरे लोग भी उस जहाज के अंदर होते they would have been saved. वो भी शायद बच जाते, But only one family was saved. लेकिन एक ही परिवार बचा उस सैलाब Do से। you think this was because Noah, he was very righteous? क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु ने ऐसा किया क्योंकि नोहा बहुत धर्मी व्यक्ति था? No, he just obeyed God. नहीं, लेकिन नोहा ने परमेश्वर का वो बाध्य बना And था। that's why his family was saved. और इसी कारण उसका परिवार बचा। Then again we know there was again lots of sin among human beings. उसके बाद भी हम पाते हैं कि ये पाप बढ़ता रहा मनुष्य जाति में। And one occasion we remember, I think Pastor Viman was preaching about, they wanted to build a tower. उसके बाद हमने सुना था इस बारे में कि उन्होंने एक टावर बनाया था, एक बड़ा स्मारक या इमारत, बाबिल का टावर। And God brought confusion among them because he gave them different languages there. और उसके बाद परमेश्वर ने उनको भटका दिया, उनको भाषा का एक भेद लाया उनके बीच में, सबके भाषाएं बदल गई। Now what I'm trying to say is throughout the generation people have disobeyed God. मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने परमेश्वर के प्रति अबाध्यता को बरकरार रखा। But God has been so gracious to all generation that he has shown his grace to his people. लेकिन परमेश्वर धैर्यशील और प्रेम रखा अपनी सृष्टि के प्रति हर पीढ़ी में। Always he had found some people, those who trusted him, and he showed grace to them. और हर बार उन्होंने एक ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को खोजा जो उस पर भरोसा करते हैं और उन्होंने उनको उद्धार दिया। Now according to the nature of God, God is a true judge. परमेश्वर के प्रवृत्ति को अगर आप देखें, उसका जो चारित्रिक विशेषता कि वो एक तरफ तो एक न्यायिक परमेश्वर है। According to his judgment, everybody should die, everybody should be punished. उनका न्याय को अगर देखा जाए तो उनके न्याय के माप के अनुसार तो हर एक जन सजा पाने लायक है। But God always showed grace to his people, and he chose people from different generation so that they will reflect the love of God. लेकिन उसने हमेशा अनुग्रह को दिखाया और हर पीढ़ी में उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो उससे प्रेम करते हैं और उनके चुनाव के द्वारा वो परमेश्वर के चरित्र को प्रकाश कर सके। Look at the life of Abraham. अब्राहम के जीवन को He chose देखिए, him. परमेश्वर ने उसे चुना। Not because Abraham was a righteous man. इसलिए नहीं कि अब्राहम बहुत धर्मी आदमी था।
But he trusted God, लेकिन उसने प्रभु पे भरोसा किया and that his trust was counted to him as और righteousness. उसका भरोसा, उसका जो विश्वास था, विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहरा। Even today, when we are sitting here, not all of us we are 100% righteous. और यहाँ पे जितने जन आप बैठे हैं, हम भी 100% धर्मी हैं, ऐसा नहीं। But there is one good quality we have in all of us, लेकिन एक अच्छी बात है हम में हर एक के अंदर, that we trust the Lord. कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, We have faith in God. हम भरोसा करते हैं I परमेश्वर think पे। that is the quality God is looking in each one of our और lives. यही चीज जो है परमेश्वर हम में से ढूंढता है। But throughout the generation, there are so many people, they don't trust God. लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम देखें कि बहुत से लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। And that's what exactly we are seeing in the life of Jesus. When he came into this world, some people believe him, but some did not believe him. और एक ही बात हम देख पाते हैं, जब यीशु मसीह जगत पर आए, बहुत से लोग थे जिन्होंने उनको विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास And लाया। especially those who knew the word. That means those who were the scholar, those who were Pharisees, they are the one who opposed Jesus Christ. और माने दुर्भाग्य की बात यह भी है कि कई लोगों में से वैसे लोग भी थे जो लोग सचमुच में जो पवित्र शास्त्र है, प्रभु का वचन, उसको जानते थे, उसमें वो लोग विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्होंने ही प्रभु पर विश्वास नहीं लाया। So let me just take us back to my last sermon from book of Matthew. मैं मत्ती से जो प्रचार किया था पिछला, उसको हम एक बार देख लेते हैं। We said that the disciples were accused of breaking the tradition of the elders. हमने पाया था कि शिष्यों को ऐसा तोहमत दिया गया, दोष लगाया गया कि उन्होंने प्राचीन वर्ग जो लोग थे उनके परंपरा को तोड़ा है। Jesus in return, he accused the Pharisees of breaking the law for the sake of their tradition. और यीशु मसीह ने उनको पलटा, उनको तोहमत लगाया कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है अपनी बनाई परंपरा को बनाने के लिए। And there we learn two things. वहां पे दो बातों को हमने सीखा। Number one, पहला, don't nullify the word of God for the sake of your tradition. हमने ये सीखा था कि परमेश्वर के वचन को आप इनकारे या तोड़े ना अपनी परंपराओं को जोर देने के लिए। And second thing we saw, that break those tradition which is not according to the word और of हमने God. ये भी सीखा था कि उन तमाम परंपराओं को तोड़ने की आवश्यकता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। So we have seen there were so many traditions in those days which was not according to the word of God. हमने सीखा था कि कई सारी परंपराएं उन दिनों में थी जो प्रभु के वचन के से दूर थी। And Jesus was very upset about this और one. यीशु मसीह बहुत ज्यादा इस बात को लेकर अफसोस में थे। And let me give you one example. एक उदाहरण देना चाहते हैं। We know that we all have sometimes face different kind of physical problem. कई बार हम सब एक शारीरिक समस्याओं से गुजरते हैं। And there are so many kinds of diseases today. और कई सारे बीमारियां आज तो है। And for different sickness, you have different medicine. अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग औषधियां हैं। You imagine that there is a company who invented one medicine for all the sickness. एक कल्पना कीजिए कि एक कंपनी है जिसने एक दवाई बनाई है हर प्रकार की बीमारी के लिए। I see a smile in some people's face. कुछ लोग हंस रहे हैं। If you imagine that one medicine is for all the disease, then all of us can become doctor, isn't it? अगर एक औषधि से हर बीमारी चंगी हो जाए तो हम सब डॉक्टर बन सकते हैं ना? Isn't it? Isn't it wonderful? बहुत अच्छा है ना? Now in the Old Testament, we find that they had different kinds of sin. पुराने नियम में हम पाते हैं कि अलग अलग प्रकार के पाप करते थे लोग। And if they committed that sin, they are defiled. और वैसा पाप को अगर करते हैं तो वो अशुद्ध होते थे। And for different sin, there was different rituals. और हर एक पाप के लिए अलग अलग परंपरा थी, कुछ कुरीतियां थी to clean that person. ताकि उस व्यक्ति को साफ किया जा सके। But the day was coming when for all of this, there will be one solution, that is Jesus Christ. और एक दिन आ रहा था कि हर एक मामले के लिए एक समाधान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। Because Jesus knew that he is coming to fulfill all the law. और क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो आ रहे हैं
ताकि हर एक प्रकार की जो व्यवस्था है उसको वो पूरा So कर that सके। means now you don't have to bring any other sacrifice, because one sacrifice, final and perfect, which Jesus Christ will offer himself. क्योंकि एक बलिदान जो शुद्ध है, जो सिद्ध है, वो सारी बातों का जो मांग है उसको पूरा करेगा। So in my example about medicine, you imagine that we have different medicine for different disease. आप सोचिएगा कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग औषधियां। Now that's not worse. The worst is this: there are so many medical company, they make some kind of medicine which is not even medicine, and they are giving it to people. अभी तो खराब बात ये भी है कि कई सारे कंपनियां हैं, वो लोग ऐसे ऐसे औषधियां बना रहे हैं जो असल में औषधि है ही नहीं। In recently there was a company in Ranchi which was caught. रांची में एक कंपनी पकड़ी गई। You are eating this medicine thinking, oh, this is a good medicine. आप उस औषधि को खा रहे हैं सोचकर कि हाँ ये तो अच्छा औषधि है। But there is nothing. Somebody told me when they put it, the bhusi, what you call it, like husk, It's more of a husk or hay. Yeah, hay, वो गाय खाता है जो। हाँ, उसको अंदर में डाल देते हैं. So you imagine, what a rubbish. एक बहुत ही कूड़ा करकट खिला रहे हैं एक Now तरह that's से। what exactly it was happening here when Jesus could see that there are law of God. यीशु मसीह देख सका था कि कुछ कुछ जो परमेश्वर का व्यवस्था है, But there are the traditions of men which has nothing to do with the word of God. और कई सारी परंपराएं मनुष्य की बनाई ऐसी है जो प्रभु के व्यवस्था से कोई मेल नहीं है, लेकिन उन्होंने बना के रखा है। There are many good medicines. बहुत सारी अच्छी दवाइयां हैं, But there are so many medicine which is not even a medicine. लेकिन कई सारी दवाइयां ऐसी हैं जो असल में दवाई है ही नहीं। Will you not be upset about that? क्या आप इससे नाखुश ना That's what होंगे? exactly happened to Jesus. और यही बात यीशु मसीह के साथ हुआ। He was very upset. वो बहुत ही नाखुश थे। Why are you teaching the tradition of man as the doctrine of God? आप क्यों मनुष्य की बनाई परंपरा को इस तरह पेश कर रहे हैं कि मानो ये प्रभु का नियम है। Okay, so this is the situation here. ऐसी एक परिस्थिति यहाँ पर है। And so let's go further from here. आगे बढ़ते हैं हम लोग। Let's turn to Matthew chapter 15 from verse 7 to 20. मत्ती का 15 7 से 20 हम पढ़ेंगे। And Jesus is a little bit harsh to those people. यीशु मसीह काफी क्रोधित हैं इन लोगों के ऊपर। Now, I'm sure that you will not be very loving and kind to those people, those who are making fake medicine. जैसा कि आप भी खुश नहीं होंगे उन लोगों के प्रति जो लोग एक झूठा मेडिसिन बनाते हैं। If you get opportunity, maybe you will just, give them one slap. अगर मौका मिले तो आप तो शायद उनको पिटाई भी करेंगे, है ना? But this is what exactly Jesus is doing. और यीशु मसीह भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। In the top of that, actually, he is preparing, he is leading people to that one solution, that one medicine. और असल में वो उनको उस एक जो समाधान है उसके लिए तैयारी दे रहे हैं। Okay, so let's read. Maybe Nutan can help us read in Hindi. We will just follow in the script screen. हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन में। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मनुष्य से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है,
परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। Okay, so today we'll see the heart and mouth connection. आज हम देखेंगे हमारा हृदय और हमारा मुख इसमें क्या सामंजस्य है, क्या इनका जोड़ है। This is the title of my message. और यही शीर्षक है आज के प्रचार का। Before we see the word of God, may we'll just pray and ask the Lord to bless our time आइए together. हम प्रार्थना करेंगे हमारे समय के लिए। Father God, I thank you for your word. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए। Lord, even as we come before you to hear your word, Lord, I pray that the Spirit of the Lord will lead and guide. प्रभु जबकि हम आपके वचन को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा हमें अगुवाई करे। Lord, give me right words to say. प्रभु सही वचनों को दे मुझे। And Lord, also I pray for all my dear brothers and sisters, Lord, हमारे give them सभी- heart so that they will be able to understand. प्रभु हमारे भाई बहनों को समर्पण करते हैं, एक हृदय दे ताकि आपके वचन को समझ पाएं। Thank you, love. We love you. In Jesus' name I धन्यवाद pray. देते हैं यीशु के नाम से। Amen. Now, if you see that, let's maybe just go through this scripture again. फिर से हम एक बार देखते हैं इस वचन को। Now, in verse 7, he said, You hypocrites. उसने 7वें पद में कहा, हे कपटियों। I don't know how many of you really understand the word hypocrites. मुझे नहीं पता आप लोग कितने जन कपटी इस वर्ड को समझते हैं, शब्द को। Now, the hypocrite is like actor. The meaning is actor. जो कपटी है उसका मतलब है कि जो अभिनय कर रहा है। That means you don't do it from your heart, but you are just acting it. इसका मतलब आपका हृदय उसमें नहीं है, लेकिन आप एक दिखावा कर रहे हैं। How many of you have seen Salman Khan got married? कितनों ने देखा है कि सलमान खान का शादी हो गया? Yeah, in the many movie you will see that. How many times he got married with different girls? कितने सिनेमाओं में आपने देखा है कि वो कितनों के साथ शादी हुआ है? But in reality, is he married? सच्चाई में क्या शादी हुआ है? No. This is what this is like acting. Now, you are doing something, but it's not coming from your heart. इसका मतलब यही है, कपटी होने का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपके हृदय से नहीं आ रहा है। And Jesus is saying, you hypocrites, and then he is quoting from the scripture from book of Isaiah. और यीशु मसीह ने उनको कहा, हे कपटियों, और उसके बाद उसको वचन से यशाया का पुस्तक से कुछ बातों को He बता said, रहा है। well did Isaiah prophesy of you when he said, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है। he said, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। Now it's very, very serious. ये बहुत ही संवेदनशील बात है। We really have to understand truly what the word is saying. यहाँ पे समझने की जरूरत है वचन बोल क्या रहा है हमसे। Because many times, maybe we are here worshipping the Lord, but our heart, our mind is somewhere else. क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बैठकर हम लोग प्रभु की इबादत कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय कहीं और ही है। That's human nature. ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। Many times we say something, but we don't mean it. हम कई बार बोलते कुछ हैं लेकिन हमारा मन में कुछ और ही है। Now, the Lord knows everything what is there in our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को बहुत भली भांति जानता So है। we need to be very, very careful when तो we are हमें बहुत here, सावधान होना है जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। when we are worshipping the Lord. जब हम स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर We need की, to worship the Lord from our heart. प्रभु की स्तुति हमारे हृदय से करनी है। And when you say something to your brother and your sister, you say it from your heart. आप जब अपने भाई या बहन से कुछ बोलते हैं, आप अपने हृदय से बोलिए। There are so many people today, they will say many things to you, but they don't mean it. कई लोग हैं जो कई बातों को करते हैं आज के समय, लेकिन सचमुच में मन से वो मानते ही नहीं है। They just become a very good actor. लेकिन एक अच्छा अभिनेता के नाय वो लोग बात करते Even हैं। sometimes they will say good words, and then their intention is to get money from you. कई बार तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उनका मन में यही है कि आपसे कुछ पैसा हथिया सके। So I think here Jesus was very upset about these people, that they are saying that look at your disciple, they don't wash their hand and they eat. और यहाँ पे यीशु मसीह क्रोधित है, और यीशु मसीह को क्यों क्रोधित है? क्योंकि वो बोल रहे हैं ये जो फरीसी लोग कि देखो यीशु आपके शिष्यों को हाथ नहीं धोते हैं खाने के टाइम। But
look at them, like, you will say, oh, how concerned they are about holiness of God. सुनने से लगेगा कि ये जो फरीसी लोग हैं कितने ज्यादा सजग हैं पवित्रता की बातों But को that's लेकर। not the truth. लेकिन सच्चाई वो नहीं है, This is just an acting. ये एक अभिनय है, एक This is just mere words they are saying. जस्ट कुछ शब्दों को बोल रहे हैं वो। So we need to be very, very careful in our life. हमें भी बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है हमारे खुद के जीवन में। I'll never forget, once we visited one family, मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक परिवार को हमने भेंट किया। and of course this is first time we are visiting. पहली बार हम उस परिवार में So गए। they gave us very nice sweet. This was right after our marriage, I think. शादी Gave के us तुरंत बाद मीठा दिया हमें उन्होंने। nice sweet and tea and all kinds of sweets, different types of अलग sweets. अलग प्रकार के मिठाइयाँ, चाय हमें दिया गया। And so after some time we said, okay, so we'll just go back. उसके बाद हमने बोला ठीक है हम लोग अभी निकलेंगे। And the head of the family said, what? No, you must eat dinner today. तो फिर जो परिवार का जो मुखिया है उसने बोला क्या, कैसे जा रहे हैं, आपको तो रात का खाना खाना है हमारे साथ। Then I said, no, we already have our food at home. We cannot eat. लेकिन नहीं, हम लोग तो घर में भी खाना पका के आए हैं, But हम लोग खाना नहीं खा But he सकते। insisted, no, you must eat and go. उसने फिर हमको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि नहीं आपको खाना है हमारे साथ। And so finally we looked at each other and I said, okay, ठीक है, तो हमने एक दूसरे को देखा और ठीक है खा ही लेते हैं। And then once we said, okay, yes, then both of them, they went inside. और जैसे ही हमने हाँ बोला तो वो लोग दोनों अंदर के कमरे में चले गए। And I'm sure that my wife must be, might be just, scolding the husband, why did you say this? तो शायद मैं तो कल्पना कर रहा हूँ वो बीवी शायद उसको झाड़ रही होगी कि क्यों तुम बोला उसको खाने के लिए। Almost, I think after 5 minutes they came out. करीब 5 मिनट के बाद वो लोग बाहर आए। And they managed to cook some rice and anda curry, egg curry, and they gave us dinner. भात और अंडा वगैरह कुछ। Now he was not serious when he said, have dinner. जब वो हमें खाने के लिए निमंत्रण कर रहा था वो सचमुच में मीन नहीं कर रहा था। Actually, that did not come out from his heart. ये शायद उनके हृदय से नहीं निकला था। Now, this is what God is very upset about people when they don't do a thing और from their यही बात heart. है कि परमेश्वर भी काफी नाखुश होता है उन लोगों के प्रति जो लोग हृदय से कुछ करते हैं और मुंह से कुछ करते हैं। Now, if I was God, if I knew that, this guy is saying just from his mouth, I could have said, no, that's okay, we'll just go out. अगर मैं परमेश्वर होता तो मैं समझ जाता और मैं तब उन सज्जन को बोलता कि नहीं कोई जरूरत नहीं खाने का, हम नहीं खाएंगे। And then he is saying in verse 9, और उसके बाद 9वें पद में बता रहा है, in vain do they worship me, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, teaching as doctrine the commandments of men. क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते Now हैं। for God, when you are not doing from your heart, everything is in vain. और परमेश्वर के लिए अगर हमारी उपासना हृदय से नहीं है लेकिन बाहर से है तो ये व्यर्थ है प्रभु की नजर What में। is God concerned about? परमेश्वर किस चीज के प्रति He is सजग है? only concerned about your heart. परमेश्वर सिर्फ आपके हृदय को लेके सजग है। How about Old Testament? पुराने नियम में क्या पाते हैं हम? Even in the Old Testament, God was only concerned about the heart of the people. पुराने नियम में भी हम पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता था। Now, you may remember, you may sometimes think about, no. In Old Testament, God was concerned about those sacrifices they would bring. आप शायद बोलेंगे नहीं हमने तो पुराने नियम में ऐसा पाया है कि परमेश्वर लोगों के जो वेदियों में वो लोग बलि लेके आते थे ये ज्यादा पसंद करता था। You may be sometime even mistake God for, he's a God, who like to eat different kinds of meat. आपको शायद ऐसा भी लगे पुराने नियम के कुछ बातों को देख के कि शायद परमेश्वर ऐसा था कि शायद बहुत तरह के मांसों को वो खाता था। No. He is not interested in eating meat, but he was interested in seeing the heart of people. परमेश्वर उन चीजों को खाने में या उनको लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, When he लेकिन say- जो लाते थे उनके हृदय को देखता When था। he said that bring gift to me, जब वो कहता था कि तुम अपने दान या उपहार मेरे पास लाओ, what he sees is what kind of gift you are bringing to him. वो देखना चाहता था कि आप किस प्रकार का उपहार उसके लिए लाते Of हैं। course, in those days, they used to bring a goat or sheep
or different kinds of animal, उन दिनों में वो लोग अलग अलग प्रकार के भेड़ या बकरी या अलग अलग जानवरों को लाते थे। just for a moment you imagine that Ravi is a very rich man in those days. थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए रवि उन दिनों में है और काफी पैसे वाला व्यक्ति है। He has 200 goats, 200 उनके पास बकरियां हैं मान लीजिए, 100 donkeys, और करीब 100 गधे हैं, and maybe 500 sheep. 500 भेड़ हैं। And then God is asking him, Ravi, bring me one sheep. और परमेश्वर ने कहा, रवि मेरे लिए एक भेड़ लाओ उपहार स्वरूप। Now, do you think that God is planning to eat that sheep? आपको क्या लगता है परमेश्वर उस भेड़ को खाने का योजना बना रहे हैं? No, he wanted to see what is Ravi's heart when he bring things to me. परमेश्वर देखना चाहते हैं कि रवि का हृदय कैसा है जब वो उस उपहार को लाता है। If Ravi is a very good man, he loves the Lord, रवि अगर सचमुच प्रभु से प्रेम करता है, अच्छा व्यक्ति and है, he really wants to respect and honor God, और वो सचमुच प्रभु को सम्मान करना चाहता है इस बारे में, what he will do? वो क्या करेगा? He will just go and look for the best one. और जाके वो सबसे हिष्ट पुष्ट अच्छा वाला भेड़ को खोजेगा। And definitely he will tell his shepherd, get me the best sheep. और अपने जो चरवाहे लोग हैं उनको बोलेगा, अच्छा देखो सबसे अच्छा वाला भेड़ निकालो बाहर। And if he just bring it and he didn't like it, no, not this one, even the best one, better मान one. लीजिए एक लेके आया, बोले अरे नहीं ये वाला नहीं, एक और भी अच्छा को लाओ। And God is watching all of this thing. और परमेश्वर इन तमाम चीजों को देख पाता है। And when he brings the gift, और जब वो उस उपहार को लाता है, God is very happy. परमेश्वर बहुत तृप्त है। Why? क्यों? Because of the heart behind bringing those gifts. क्योंकि प्रभु उस हृदय को देख पाया, जांच पाया जो उस उपहार को लाने वाले का है। But if Ravi was like, a little कंजूस type, लेकिन रवि मान लीजिए एक कंजूस व्यक्ति के नाय है, and maybe he doesn't love the Lord, बट वो प्रभु से प्रेम भी नहीं करता उतना ज्यादा, and just from mouth, from lips he says many things, but from his heart he doesn't love the मान Lord. लीजिए मुंह से वो बहुत सारा ऐसा बात करता है जो लगेगा प्रेम करता है प्रभु से, लेकिन हृदय से नहीं करता। Then he will just go फिर वो जाएगा भेड़ का भीड़ में and look for the weakest one. सबसे दुर्बल कमजोर मरियल को खोजेगा वो। And then if the shepherd will say, why don't you take this one, और जो अगर चरवाहा बोलेगा कि साहब ये अच्छा वाला ले लीजिए, little better one, ये अच्छा भेड़ को ले सन लीजिए, मूर्ख कहेंगे चुप मत, he will just go for. इसको नहीं हटाओ इसको। And God is watching all of और this. परमेश्वर इन बातों को देख सकता है। And that's why in book of Isaiah chapter 1 you will find, इसीलिए यशाया की पुस्तक में एक अध्याय में हम पाते हैं, he said, I am sick of your gifts. प्रभु बोलता है कि मैं थक चुका हूं तुम लोगों के इन उपहारों को ले लेकर, And I hate the festival. और तुम्हारे उत्सवों को से मैं परेशान हो चुका हूं। In fact, God was the one who asked them to observe this festival. हालांकि परमेश्वर ने उन उत्सवों को बनाया था उनके But लिए, why God was so upset? लेकिन परमेश्वर क्यों चिढ़ चुका है उनके उत्सवों से? Because they were not doing from their heart. क्योंकि वो अपने हृदय से उनको नहीं कर रहे। There are so many people today, आज बहुत से लोग हैं they do things. जो करते हैं बहुत चीजों को, Coming to church, चर्च में भी आते हैं, going to temple, मंदिर में भी जाते हैं, mosque. मस्जिद में भी जाते हैं। Oh, you can see that, oh, how holy these people are. आपको लगेगा हाँ कितने अच्छे हैं, But if you look at their heart, अगर हृदय को देखें it will tell you completely a different story. शायद एक दूसरी कहानी मिलेगी। And God is not happy with और that. परमेश्वर इन बातों से नाखुश है। And that's why he was very upset here. And he said, इसलिए- you hypocrites. और यहाँ पर इसीलिए प्रभु ने कहा तुम कपटी हो। So what do we learn here? यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? Word that does not come from heart is in vain. जो शब्द या जो वचन हमारे हृदय से ना आए वो व्यर्थ है। Look at the fight here. यहाँ पे इस झगड़े को देख सकते Why हैं। are they fighting? क्यों लड़ रहे हैं? Just wanted to prove that I love you more than you love me. इस बात को प्रमाण करने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। They are fighting. वो लोग झगड़ रहे हैं। That's not love. ये प्रेम नहीं है। Okay. Now let's go further. आगे बढ़ते हैं हम। And then there we verse 10. 10वां पद, And he called the people to him और उसने लोगों को बुलाया अपने पास, and said to them, कहा hear and understand, it is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of mouth that defiles a person.
और उसने लोगों से पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। Why is it so? ऐसा क्यों? He is further saying in verse 16 and 17, 16-17 में ऐसा कहता and है, he said, are you also still without understanding? और उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझे हो? Do you not see whatever goes into mouth passes into the stomach and is expelled? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वहां पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है? So what goes from your mouth doesn't go into your heart. जो आपके मुंह से घुसता है वो आपके हृदय में नहीं जाता, But what is there in your heart that comes out from your mouth? लेकिन जो आपके हृदय में है वही आपके मुंह से बाहर आता है। This is like one-way traffic. ये एक तरफा एक ट्रैफिक बोल सकते हैं। Mouth is something which only the connection between mouth and heart is whatever is there in your heart that comes out through your mouth. आपके हृदय में और मुंह में एक ही चीज का जोड़ है कि जो हृदय में होगा वही बाहर आएगा। But what goes into your mouth doesn't go into your heart. लेकिन जो आपके मुंह से घुसता है वो आपके हृदय में नहीं जाता है। So whatever you eat, that is not going to defile you. आप जो खाते हैं वो खाना आपको अपवित्र नहीं करेगा। That may sometime give you more weight, हाँ, शायद खाना आपको थोड़ा वजनदार बना दे, maybe some sickness, शायद बीमारी भी दे दे, but spiritually it's not going to defile you. लेकिन आध्यात्मिक तौर पे या आत्मिक तौर पे ये आपको किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं करेगा। But you will say, wait. In Old Testament, the scripture says that if you don't eat this, otherwise you will be defiled. पुराने नियम में कई जगह पे लिखा हुआ है कि तुम अगर ये चीजों को खाओगे तो अपवित्र माने जाओगे। Now, in the Old Testament, if you remember my sermon, I don't know, long back, if you remember that in Old Testament, how you come to the Lord was different in New Testament. आपने शायद कभी सुना होगा, जैसे मैंने बताया था कि पुराने नियम में प्रभु की उपस्थिति में आने का तरीका और नए नियम में प्रभु की उपस्थिति में आने का तरीका में भिन्नता है। Because in the Old Testament you had to do all these rituals before you come to God. क्योंकि पुराने नियम में कई प्रकार के जो नीति नियम थे उसको करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ता था। But now you don't have to do it because Jesus has already completed those things. लेकिन अब वो सारे नीति नियमों का करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने सारे चीजों को पूरा किया है। In the Old Testament, how a person is declared clean because of set of rituals. पुराने नियम में कई सारे नियमों को करने के द्वारा वो लोग पवित्र घोषित किए जाते थे। But now in New Testament, how you are declared clean or righteous because of the blood of Jesus. और नए नियम में आप कैसे पवित्र होते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। That's why in the Old Testament there was certain food that they were asked not to eat. इसलिए पुराने नियम में कुछ खाने ऐसे थे जिसको मना किया गया था खाने के लिए। And one reason in the Old Testament God asked them to do it so that they will be different from the people that play from that पुराने place. नियम में कई चीजों को प्रभु ने उन्हें करने से परहेज किया था, इसीलिए ताकि उनको एक ऐसा गोष्ठी बना सके जो दूसरे आसपास के लोगों से अलग हो। When God chose Abraham, प्रभु ने जब अब्राहम को चुना, and from Abraham we know that the Israel they came, हम अब्राहम से इज़राइल आया जानते हैं, and God wanted to make this nation as a holy nation. और परमेश्वर का उद्देश्य था कि इज़राइल गोष्ठी को वो एक पवित्र राष्ट्र के रूप में His बनाना चाहता intention था। was that Israel, the people of Israel, they will represent God and they will live a different life from the people in that area. और उनका उद्देश्य ये था कि इजरायली लोग जो थे एक अलग जीवन को यापन करेंगे और सब लोगों के बीच में परमेश्वर के जो प्रतिनिधि के रूप में एक पवित्र जीवन को व्यतीत करेंगे। And why was he asking them to do that? वो ऐसा क्यों करने के लिए चाह रहे थे? So that the people, when they will see their life, they will know God.
ताकि लोग जब उनके जीवन को देखेंगे वो लोग प्रभु का परिचय पाएंगे। He wanted them to be little different. वो चाहता था वो भिन्न हो, अलग हो। They eat this food, you don't eat this food. वो आप ऐसे खानों को खाते हैं लेकिन ये नहीं खाते हैं। So he wanted them to be different than the people of that place. तो उन लोगों को उस समय के लोगों से अलग करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में we are asked, we are allowed, I would say, we are allowed to eat whatever you want. लेकिन नए नियम में प्रभु ने ये इजाजत दी है, आप कुछ भी चीजों को खा सकते हैं। By those rituals, we are not asked to observe those rituals which was there in the Old Testament. पुराने नियम में जो नीति नियम थे उनको नए नियम में लाया नहीं गया है हमारे लिए। Because now we are clean by the blood of Jesus. क्योंकि अब हम साफ हुए हैं, पवित्र हुए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? That means what goes into your mouth does not defile a person. इसका मतलब आपके मुंह से जो भी घुसता है वो आपको पवित्र नहीं करता। Now some people like fish, कुछ लोग मछली पसंद करते हैं, some people they don't. कुछ लोग नहीं पसंद करते। Some people are vegetarian, some people are non-vegetarian. कुछ लोग आमिष खाते हैं, कुछ लोग निरामिष खाते हैं। And some people eat this meat, some people don't eat that meat. कुछ लोग ये मांस को खाते हैं, कुछ लोग दूसरे मांस को खाते हैं। Now, scripturally, this is not going to defile you. वचन के अनुसार ये खाना आपको पवित्र नहीं बनाता। If anything you can eat it, I mean, that's okay. अगर आप खाते हैं कुछ भी ठीक है। If you don't eat, that's also is okay. अगर आप नहीं खाते हैं तो भी ठीक है। Now, we should not, look down on people, those who don't eat certain food or those who eat certain food. इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग कुछ खानों को खाते हैं या कुछ खानों को नहीं खाते हैं हम उनको छोटे तरीके से देखें। What does the scripture says? क्योंकि बाइबल क्या कहता है? In Romans chapter 13 verse 3, रोमियो का 13:3 में लिखा है, Let not the one who eat despise the one who abstain, and let not the one who abstain pass judgment on the one who eats. और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ ना जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। But we need to be also careful. लेकिन हमें संवेदनशील और सावधान भी रहना है। Don't make your brother stumble. आपका भाई फिसले नहीं, गिरे नहीं। The scripture says, therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat. इस कारण Lest I make my brother stumble. इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। We should not be insensitive. हमें असंवेदनशील नहीं बनना है। Oh, the scripture has given me permission to eat whatever I want. वचन ने बोला है मैं सब कुछ खा सकता हूँ। And so I'm not sensitive to the people around me. तो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो लोग क्या नापसंद करते हैं उसके प्रति मैं बिल्कुल ध्यान ना दूं। Every day I will bring something which my neighbor will not like. मैं हर दिन वैसे एक खाने को खाऊंगा जो मेरा प्रतिवेशी पसंद नहीं करता है। And not only that, I'll just go to him and say, "Oh, तुम्ही खाओ ना?" और मैं I'll go to that person and say, "You don't eat this." Oh, you don't eat? आप नहीं खाते इस खाने It's को? very tasty. अरे बहुत टेस्टी चीज है। You must eat. आपको तो खाना चाहिए। No, it's saying that we need to be sensitive. लेकिन वचन बता रहा है हमें संवेदनशील बनना है। I know there are some people in our church and even outside our church, they don't eat certain kind of food. मैं जानता हूँ कि हमारी कलीसिया में और कलीसिया के बाहर भी कुछ लोग हैं जो लोग कुछ खास चीजों को नहीं खाते हैं। Recently I was traveling with one of a friend. He said, "I don't eat this particular meat in India." मेरा एक दोस्त उसके साथ में सफर कर रहा था, उसने कहा कि भारत में इस फलाने खाने को मैं खाता नहीं हूँ। And the reason he gave me so that when my friends, they ask me, non-believer friend, they ask me that, "Do you eat this?" I can say with boldness, "No, I don't eat." तो उसने कहा कि ताकि मेरे जो भारतीय कुछ दोस्त हैं वो लोग अगर मुझे पूछते हैं अच्छा आप क्या ऐसा खाते हैं, तो मैं उन्हें एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूं नहीं मैं नहीं खाता हूं। So we need to be very, very careful. हमें सावधानी बरतनी है। We need to be sensitive. Yes, one side we can eat everything. एक तरफ हाँ जरूर आपको इजाजत है हर चीज को खाने के लिए। But the other side we also have to be very, very sensitive. लेकिन दूसरी तरफ हमें संवेदनशील भी बनना है। Maybe sensitive to your life partner. आपको अपने जीवन संगी जो है उसके प्रति भी संवेदनशील। Oh, I like mutton. मुझे
मटन अच्छा लगता but है, Nutan doesn't like. उनको पसंद नहीं है, So we don't eat mutton. तो हम लोग घर में नहीं खाते मटन। It's not that I'm very fond of mutton, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ मटन, but she doesn't like it, so I said, okay, I also don't like it. तो उन्हें पसंद नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। Just to show that, I care for you, I love you. ठीक है, इस बात को प्रकाश करने के लिए, हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। To say I love you to your Hindu friend, maybe you have to do certain thing. तो आपके अगर कोई हिंदू दोस्त है या गैर मसीह दोस्त है, आप उसको अगर बतलाना चाहते हैं कि हाँ दोस्त मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो शायद उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। Be sensitive to your आपको संवेदनशील होना your है, friends, your आपके दोस्तों के spouse, प्रति, अपने बीवी के your प्रति, family members. परिवार के लोगों के प्रति। And tomorrow one should not demand, you see, Pastor Sushil, he gave up, you must also give up. कोई ऐसा ना बोले कि हाँ पास्टर सुशील ने प्रचार किया था, छोड़ दो तो तुम भी छोड़ दो। No, I mean, this is, okay, as the Lord leads you. जैसे प्रभु आपकी अगुवाई करे। Let's read verse 12. 12 पद को पढ़े। Then the disciples came and said to him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? He answered them, उसने उनसे उत्तर दिया, every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। Let them alone. They are blind guides. And if the blind leads the blind, both will fall into a pit. उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। Now the Pharisees got offended. जो फरीसी लोग थे वो लोग चिढ़ गए। When Jesus said this thing, they were offended. जब यीशु मसीह ने ये बातों को कहा, वो बहुत गुस्सा गए। They didn't like it. उनको पसंद नहीं था इसका बात, यीशु का बात। What does Jesus think about himself? ओ यीशु मसीह क्या सोचते हैं अपने बारे में? हाँ, And they might have gone away from there very, very angry. और वहां से शायद बहुत गुस्से से वो लोग बाहर निकल गए। Offended heart brings destructions. एक चिढ़ा हुआ दिल या गुस्साया दिल हर प्रकार की क्षति को लाता है। There are so many people today, they are offended by God, even by the scripture. कई लोग हैं आज प्रभु के प्रति गुस्साए हुए हैं, If उसके somebody वचन के प्रति भी। if somebody is sick, अगर कोई बीमार है, and he will curse God. God, why did you bring this sickness to कोई me? बीमार है, वो प्रभु को गुस्सा करता है कि प्रभु क्यों आपने मेरे को बीमार किया? There are so many people now, they have turned against God. और Because कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु के विरोधिता किया है। when you go and share to people that Jesus is the only way, they get offended. जब आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु पथ है, तो आपसे चिढ़ते हैं आपको देखकर। When somebody is living in sin, just go and tell him this is not the way of God, he will feel offended. कोई आदमी अगर कोई गलत जीवन जी रहा है, पाप में जी रहा है, आप उसके मुंह पे जाके उसको बोलिए, वो आप पे चिढ़ेगा। If you are driving the road and then all of a sudden you broke the traffic law, अगर आपने रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक के नियम को तोड़ा, and then surgeon will come and say, you have broke the law. सर्जेंट आएगा बोलेगा आपने तो नियम तोड़ा है। And maybe from inside you will say that, is there a law like this? आप मनी मन सोचेंगे ऐसा क्या कोई कानून है भी? काश ये नियम ही नहीं होता। I wish there wouldn't have been any law. That kind of thinking. When you think about God, and when somebody comes and tell you that, no, you are not supposed to do, because according to the scripture, you are not supposed to do this. जब हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु का वचन के अनुसार हम लोग अगर इसको पाते हैं कि मुझे फलाना चीज नहीं करना चाहिए, फिर ये गलत है मेरे में, then if somebody really wants to do it, अगर सचमुच में कोई तब भी करना चाहे, I said, okay, I don't care about God. तो वो बोलेगा हाँ मैं मेरे को परवाह नहीं करता हूँ, जो मर्जी हो। You see the offended heart? आप समझ सकते हैं एक जो गुस्साया हुआ चिढ़ा हुआ दिल। Do you remember why John the Baptist was beheaded? आपको पता है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, उसका सर क्यों कलम किया गया? We know that. I had preached on that. उस पर हमने प्रचार किया था। Offended heart. एक गुस्साया चिढ़ा हुआ दिल, An offended heart can bring destruction. एक गुस्साया दिल, चिढ़ा दिल एक क्षति को ला सकता है। Many people get offended by the teaching of Christ and rebel against God. कई लोग हैं जो लोग यीशु के शिक्षाओं से भी जो चिढ़े हुए हैं, या फिर मान लीजिए प्रभु की विरोधिता And they करते हैं। deny the existence of God. और कई लोग हैं जो लोग
परमेश्वर के अस्तित्व को भी झुठलाते हैं। Like evolution is one example. एवोल्यूशन को लेकर बोलते हैं बहुत लोग, He said, "Oh, there is no God." ओ कोई परमेश्वर नहीं है, You know, over the years we have come from monkey, हम लोग तो बंदर से आए हैं। and so you know all these kinds of theory they इस come तरह up with. की कुछ कुछ बातें हैं। This is one of the theory. There are many other theories. Just to say there is no God, they come up with their own ideology. एक तो ये थ्योरी है, लेकिन इस प्रकार की कई सारी बातें हैं, तत्व हैं जो लोग निकाल कर लाए हैं सिर्फ इस बात को प्रमाण करने के लिए कोई प्रभु नहीं But है। the truth is that the life without God becomes like walking in darkness. लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन जिसमें परमेश्वर नहीं है वहां अंधेरे में चलने के जैसा है। Why did Jesus tell these people as blind guide? क्यों यीशु मसीह ने इनको बोला था कि ये लोग अंधे अगुवे हैं? Because they don't know the truth. क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते, They don't care about righteousness. धार्मिकता को लेके कोई परवाह नहीं होती, They don't care about godliness. परमेश्वर का जो जीवन धारा होना चाहिए उसको लेके कुछ नहीं सोचते। They don't care about sometime even the law of the land. कई बार जो देश का कानून है, ये जो राज्य का नियम है, उसको लेके भी उनको कोई परवाह नहीं। If somebody is watching, I want to be a good citizen of this country. अगर कोई मेरे तरफ नजर गड़ा के रखा है तो भी मैं अच्छा आदमी बनूंगा। If nobody is watching me, कोई अगर मुझे नहीं देख रहा है okay, so I will do whatever I want. तो मैं जो मर्जी करूंगा। Okay, so life without God is like walking in the darkness. तो जीवन जिसमें परमेश्वर नहीं है वो अंधेरे में चलने के समान है। God is light to our life. परमेश्वर ही हमारे जीवन के लिए उजाला है। Today everybody need this light. परमेश्वर का यह ज्योति हमेशा बहुतों को Today people are living in sin just because they deny God. कई लोग हैं जो पापमय जीवन को यापन करते हैं सिर्फ एक कारण के लिए, प्रभु को अपना लाइफ में जगह नहीं दी है। And we know that different kinds of sins are there in our society. कई प्रकार के चीजें हैं हमारे समाज में, And not only that, following these kinds of ideology leads us to eternal death. और इस प्रकार के जो जीवन धारा को जो लोग अनुसरण करते हैं, जो एक अनंतकालीन मृत्यु या परमेश्वर का विचार में परिणत होता है। Are you for some reason offended by God? क्या कोई वजह है जिससे आप प्रभु से गुस्साए हैं, चिढ़े हुए हैं? Oh Lord, I wanted this blessing, but you did not give me. प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए था, आपने तो दिया नहीं मुझे। Lord, why this sickness? क्यों ये बीमारी आई मेरे लाइफ में? Lord, why this problem? क्यों ये समस्या आया? Why this difficult situation? क्यों ये कठिन परिस्थिति आया? But I think I'll tell you that when we'll see Him face to face, He will let us know why was that problem. शायद जिस समय हम प्रभु से रूबरू हम लोग मिलेंगे तब प्रभु शायद बहुत चीजों का व्याख्या देगा। Let's say for next 4 years, if Alex does nothing, मान लीजिए आने वाला 4 साल में एलेक्स कुछ नहीं करता है, he will just lie down in the bed. वो सिर्फ बिस्तर में सोया रहता है, Isha will bring food. ईशा उनके लिए खाना लाती है, He will eat. वो खाते हैं। Only time he will walk is to go to toilet. सिर्फ चलेगा तब जब उनको टॉयलेट जाना हो। What will happen? क्या होगा उनका? His life will become very, very weak. उनका जीवन बहुत दुर्बल हो जाएगा। But the same guy, और वही व्यक्ति when he does cycling, जब वो साइकिल चलाता है, walking in this heat, चलता है गर्मी में, he will just complain about heat. उसके बाद चलते चलते गर्मी को लेके कोसेगा। And when he is doing cycling, he become very tired. और साइकिल चलाते चलाते वो बहुत ज्यादा थक गया। And sometime when the cycle is not working, sometime he will kick the cycle. और साइकिल with मान लीजिए anger. काम नहीं कर रहा तो साइकिल को भी लात मारता है। But all of this problem, the difficult situation he is going through is good for him. ये सारा जो तकलीफदेह परिस्थिति है, अल्टीमेटली ये उसके लिए अच्छे को लाएगी। That will keep him alive. वो उसको जिंदा रखेगी। Now the difficult time will keep you alive spiritually. कठिन परिस्थिति आपके जीवन को आत्मिक रूप से जिंदा रखेगी। Don't get offended by God. परमेश्वर पर चिढ़ के कोई फायदा नहीं। Just thank Him for everything. धन्यवाद करें उसे हर एक बातों के लिए। If you are going through a difficult situation, read the book of Job. मैं बोलूंगा अगर कठिन परिस्थिति में से जाते हैं, अय्यूब का किताब पढ़िए। Okay, let's go quickly. और हम Verse खत्म 18. करेंगे 18 पद। Here it says, but what comes out? Okay, so what defiles a person? We are going to talk about that. क्या चीज को अपवित्र करता है? What comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को शुद्ध For करता है। out of the heart comes evil thought,
क्योंकि कुचिंता, हत्या, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। These are what defiles a person. यही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है। But to eat with unwashed hand does not defile a person. परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं बनाती। Okay, so what comes out of your heart through your mouth, जो हमारे हृदय से निकलता है वही अपवित्र करता है। evil thought. बुरी सोच। James 1:14 and 15. याकूब का 1:14 और 15। But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire or thinking. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Then desire, when it conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth और death. अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Sometimes it is, it's very tempting to think about something even negative. कई बार बहुत अच्छा लगता है कुछ बुरी बात को सोचने में। Maybe there are so many things in the world today, thinking about that, imagining about that, wow, you will just enjoy that. कई सारी बुरी बातें हैं जगत में जिसके बारे में सोचना, मनन करना बहुत अच्छा लगता है। But that is going to lead you into sin, लेकिन ये आपको पाप की ओर बढ़ाएगा and sin will bring death. और जरूर मृत्यु को लाएगा। What are you thinking nowadays? आज के दिन में इन दिनों क्या सोचते हैं? When you are all alone, जब आप अकेले हैं क्या सोचते when हैं? you are with friends, of course, I know that you talk about different things. आप दोस्तों के शायद अलग अलग टॉपिक में बात करते होंगे। But when you are all alone, what do you think? लेकिन आप जब अकेले होते हैं क्या सोचते हैं? What goes on in your mind? आपके मन में क्या चलता है? What is your mind involved in? आपका मन किन चीजों में जुड़ा है? Is it godly क्या वो प्रभु के दृष्टिकोण में अच्छा है or ungodly? या फिर बुरा है? Set your hearts and mind in the things above. अपने हृदय को, अपनी सोच को उन चीजों पर लगाओ जो परमेश्वर को प्रिय है। Murder. कत्ल। Okay, maybe in Hindi if you can read that. तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वहां कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। Are you angry with your brother? क्या आप अपने भाई से क्रोधित हैं? Your fellow believer? क्या अपने विश्वासियों से चिढ़े हैं? Okay, go ahead. और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड में योग्य होगा। Okay, I'm not a murderer. मैं तो कत्ल नहीं करता हूं किसी का। But are you angry with your brother? लेकिन क्या आप गुस्साले हैं अपने भाइयों से? And that's what I think is very, very important, that we have good relationship with our brothers, our neighbor, with our everybody. इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने भाइयों के साथ, अपने प्रतिवेशियों के साथ एक अच्छा रिश्ता हम कायम करें। Adultery, sexual immorality, we need to be very, very careful. व्यभिचार और बुरी बातें। The world is so wicked today. ये जगत बहुत ही खराब है इन दिनों। There are so many places where gives you platform to be immoral. आज बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो आपको बहुत अच्छा मौका देती है व्यभिचारिता या फिर गलत बातों में जुड़ने के लिए। Be careful where you go. आप थोड़ा सावधान रहे आप किन जगहों पर जाते हैं। Be careful what you see in the internet. आप सावधान रहे कि इंटरनेट में आप क्या चीजों को देखते हैं। And then of course theft, false witness, slander. और चोरी, झूठी गवाही और बुरा। Now all of these things comes from your heart. ये सारी चीजें हमारे हृदय से आती हैं। So what goes into your mouth, जो आपके मुख से जाता है that of course does not even go to your heart. वो आपके हृदय में जाता ही नहीं है, It goes to your stomach. ये आपके पेट में चला But जाता है। what comes out of your mouth, लेकिन आपके मुंह से जो निकलता है that comes from your heart. वो आपके हृदय से निकल रहा Now है। the question is, what is there in your heart? तो सवाल ये है कि आपके हृदय में है क्या?
Because whatever is there in your heart, that's what is going to come out of your mouth. क्योंकि आपके हृदय में जो होगा वही आपके मुंह से बाहर आएगा। Quickly, we can जल्द से just देख see लेते हैं सारांश। what we have seen. हमने क्या क्या देखा अब तक? Word that does not come from heart is in vain. पहला, जो वचन हमारे हृदय से सचमुच में ना निकले वो व्यर्थ है। That means whenever you praise the Lord, worship the Lord, do it from your heart. इसका मतलब जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, अपने हृदय से करें। When you tell your friend or your family member something, say it from your heart. आप अगर अपने परिवार वालों को, दोस्तों को कुछ अच्छी बात बोलते हैं, अपने हृदय से बोलिए। What goes into mouth does not defile a person. जो मुख से जाता है वो मनुष्य को पवित्र नहीं करता। Third, offended heart brings destruction. एक चिढ़ा हुआ दिल क्षति को लाता है। And what comes out of heart defiles a person. और जो हृदय से बाहर आता है वो उसे And अपवित्र then करता है। application, then you have to guard your heart. हमें क्या करना है? हमें अपने हृदय को चौकसी करना है। Why? Because it is the wellspring of life. क्योंकि ये जीवन का स्रोत है। Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Imagine with me, I live in a country where, in my hometown, you have lots of small hills and mountains. मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ छोटे छोटे चट्टान है, कुछ पठार है, पहाड़ है। And I grew up, seeing lots of streams. और मैंने बहुत सारे झरनों को देखा है। And those streams, even some people, they use for drinking water. और उन झरनों को बहुत लोग पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। And in those days, now of course the things have completely changed. In those days, if there was no spring, these people will have no water. और उन दिनों, पिछले दिनों में बता रहे हैं, अभी तो बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन पिछले दिनों में जब अगर वो स्रोत या झरना सूख जाता था तो पानी का कोई स्रोत नहीं था। You imagine 5 villages कल्पना करिए 5 गांव with no water. पानी नहीं रहता था। What is going to happen? क्या होने वाला है? Terrible situation. बहुत बुरी परिस्थिति। Wellspring of life जीवन का स्रोत is your heart. आपका हृदय है। How is your heart? आपका हृदय कैसा है आज? What kind of thing comes out of your heart? आपके हृदय से कैसी बातें बाहर आ रही है? Guard your heart. अपने हृदय को चौकसी करें। With heart you believe for righteousness. दूसरी बात जो सीखते हैं कि आप दिल से विश्वास करें धार्मिकता के ऊपर। Now heart is something by which we believe unto salvation. हृदय ही वो चीज है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज को विश्वास करते हैं। Now if there is darkness in your heart, अगर हृदय में अंधकार है, then what are you going to believe? आप क्या विश्वास करेंगे? You will not be even able to come closer to God. आप प्रभु के पास भी नहीं आ सकिएगा। Why there are so many people they don't come to God? कई लोग हैं क्यों प्रभु के पास नहीं आते हैं? Because in their heart there are so much of evil. क्योंकि बहुत सारा बुरा पाल के रखे हैं हृदय में। Praise God that you are here today. प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप यहाँ पर हैं आज। I believe you are here, that itself shows that you have a clean heart. आप ये बात को प्रदर्शन करता है आप यहाँ हैं कि आपका हृदय आप बना के रखें, But पवित्र रखें। continue to guard that. और तीसरी बात है God sees the heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। May the word of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य This हो। is prayer of David. ये दाऊद का प्रार्थना है। He is saying that, Lord, may the word of my mouth and meditation of my heart be pleasing in your और sight. दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। What do you say? आप क्या बोलते हैं? What kind of words comes out of your mouth? आपके मुख से क्या बातें आती है? Is it a word of blessing क्या आप लोगों को आशीषित करते हैं? or is it a word of curse? क्या आप लोगों को अभिशापित करते हैं? When people hear your word, do they get joy क्या लोग आपका बात सुनकर उनको अच्छा लगता है or they are pushed down? या बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं? We need to be very, very careful what comes out of our mouth. बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे हृदय से क्या बातें Now आती this time I'll call our music team and we'll just sing one last song.
एक गीत को गाएंगे आखिरी जब हम म्यूजिक टीम And को I बुलाएंगे। will encourage you to just to come before the Lord and say, Lord, I surrender my heart to you. आप इस समर्पण को रखिए अपने हृदय में कि आपके हृदय को प्रभु को दे सके। Just tell him, God, you know that, I'm not perfect. आप प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु मैं सिद्ध नहीं हूँ। None of us we are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। There are so many problems in our heart. हमारे हृदय में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। Of course, there are good part, अच्छी बातें भी but हैं। there are also maybe areas where we need to continue to ask the Lord to clean our heart. शायद बहुत सारी बातें हैं जहाँ प्रभु हमें बहुत सारा चीजों में साफ करने Maybe पड़े। there is one area that you really are struggling. शायद कोई एक बात है जो आपको बहुत ज्यादा आजमाइश में डालता है। I remember when I was director with Campus Crusade, मैं याद करता हूँ जब मैं कैंपस क्रूसेड का डायरेक्टर I था। had some argument with one of my staff. मेरे एक स्टाफ के साथ मेरा एक वाद विवाद हो गया था। Almost for 2 years, करीब 2 साल तक I had put something against her मेरे in my हृदय heart. में उनके प्रति एक बहुत विरुद्ध भावना थी। And one day the Spirit of the Lord clearly told me that you are going to go and ask forgiveness. और पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरण किया कि आज जाओ और तुम उनसे माफी मांगो। And I said this to Nutan because she was a lady, so I don't wanted to go alone. क्योंकि वो व्यक्ति एक महिला थी तो मैं अकेले नहीं जाना चाहता था। I said, let's go to them, to this family, and just ask forgiveness from them. और मैंने अपनी बीवी से कहा कि चलो हम उस परिवार में जाएंगे, उनसे हम माफी For मांगेंगे। 2 years, there was something in my heart which is not good. 2 साल तक ऐसा चीज मेरे हृदय में था जो बुरा था। Time again, the Spirit of the Lord was asking me to forgive and to just do reconciliation. पवित्र आत्मा बार बार मुझे प्रेरण कर रहा था कि तुम जाओ क्षमा मांगो, इसको अपने हृदय से निकालो। But many times I said no to that. लेकिन कई बार मैंने उस चीजों को इनकार किया And it was bothering me in my और वो heart. मुझे बौखला रहा था मेरे हृदय में। And in my heart, it was kind of, giving me some kind of pain in my heart. मेरे हृदय में एक दर्द आ गया था। And when I just went with Nutan and talked to this family, I said, forgive me, for 2 years, I had not forgiven you. मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ करिए, मैंने 2 साल तक आप लोगों के प्रति बैर रखा, मैंने आपको अच्छा नहीं Wow, what a सोचा। great relief it was. और बहुत सांत्वना, बहुत आराम मेरे अंदर आया। As if a burden is lifted up from my ऐसा heart. लगा जैसे एक बोझ को मैंने निकाल दिया है। I don't know what is there in your heart today. मैं नहीं जानता आपके हृदय में आज कैसा क्या है, But God is interested in your heart. परमेश्वर आपके हृदय पर And दिलचस्पी including रखता है। myself, if there are areas where I need to change, I need to just ask the Lord to change my heart. मुझे भी आज भी देखना है, कुछ बातें हैं अगर मेरे हृदय में हैं जो Let's- बदलने की जरूरत है, हम बदलने पाए। Let's rise to our feet. आइए please. हम खड़े हो जाएं सब। And just we are in front of God. We are before God. इस बात को ध्यान रखें कि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। The Lord says, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. परमेश्वर बोलता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम पर उपस्थित होंगे, मैं वहाँ Right हूँ। now He is here. वो आज यहाँ पर है। Just tell Him, Lord, प्रभु से बोलिए आज, Lord, this is one area I cannot handle, Lord. प्रभु ये एक चीज है जो मेरे जीवन में मैं इससे जूझ नहीं पा रहा हूँ। Maybe a thought, एक सोच, maybe some kind of enmity, कोई दुश्मनी, maybe some kind of evil thinking. कोई बुरी सोच। Just ask the Lord, Lord, change me. परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे हृदय को बदल आज। None of us we are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं, There is only one person perfect, that is God Himself. सिर्फ एक व्यक्ति सिद्ध है, वो परमेश्वर स्वयं। Only He can make us perfect. सिर्फ वही हमें सिद्ध बना सकता है। Let's just ask Him, God, change my heart. आइए हम उनसे बोलते हैं, प्रभु मेरे हृदय को बदल।